So we were discussing the ulnar nerve, which is also called as musician's nerve. The root value is C7, C8 and T1. Actually C8, T1 is sufficient for the hand, C7 is required for the muscles of the forearm. And we have seen that it is continuation of the medial cord, so which is formed by C8, T1, but C7 comes from the lateral cord, lower down, after all the branches are given, and it joins the ulnar nerve. Ulnar nerve, the cord starts in axilla where it is medial to the third part of axillary artery, then it goes to the arm where it lies on the medial border only, not like medial nerve that crossing from lateral, because it is already on the medial side. But at the level of coracobrachialis insertion, what happens is ulnar nerve goes to the posterior compartment of arm and goes to the medial epicondyle. जो भी हमको ऐसा करंट लगता है वो ulnar nerve की वजह से, when we get hurt here. Now from here it has to come to forearm anterior compartment. So it passes between the two heads of flexor carpi ulnaris and enters the forearm. This is also called as cubital tunnel. Cubital tunnel. This is also called as cubital tunnel. उसको cubital tunnel बोलते हैं. Cubital tunnel मतलब two heads of flexor carpi ulnaris. ये जो फ्लेक्सर्स है इसके जब हम टू हेड्स बोलते हैं तो एक हेड तो मीडियल साइड पे रहता है फ्लेक्सर्स का, एक्सटेंसर्स का यहाँ पे रहता है. उसके अलावा दूसरा एक हेड अल्नार पे रहेगा, तो दो हेड्स के बीच में से एंटर करेगा. नाउ दिस नर्व इन द फोरआर्म, इट लाइज lateral to flexor carpi ulnaris. Lies lateral to flexor carpi ulnaris. Okay. And medial to flexor digitorum profundus. Medial to flexor digitorum profundus. And this way it comes to the lower part of the forearm. Now median nerve was passing below the flexor retinaculum. Median nerve was passing below the flexor retinaculum, which was also called as carpal tunnel. तो ऐसा flexor retinaculum रन होता है. Okay, हमारे medial bones scaphoid and tripetral से यहाँ पे pisiform and hymen यहाँ पे ऐसे उसके बीच में से ulnar nerve जो है वो इनके ऊपर से जाता है. तो this is how it is different. It passes above the flexor retinaculum. It passes above the flexor retinaculum and enters hand. Enters the hand. अभी ये जो सारे मसल्स है, जो अल्नार नर्व से सप्लाई होते हैं, हमने बोला था उस दिन abduction by dorsal interosseous, adduction by palmar interosseous, and flexion at metacarpophalangeal joint and extension at interphalangeal joint by lumbricus. ये एक्शन इवन palmar interosseous भी करते हैं, dorsal interosseous भी करते हैं, ये वाला एक्शन. तो जब अल्नार नर्व डैमेज होती है, so one thing, clinical thing which all of you should understand. क्रिश तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका? जोर से. श्रेयस. आप नीचे देख रहे थे और मैं इधर कुछ दिखा रहा हूँ इसके लिए आपको. पैरालिसिस जब होता है, अगर फ्लेक्सर्स का पैरालिसिस होगा, ओके, तो एक्सटेंसर्स पावरफुल होते हैं. एक्सटेंसर्स का पैरालिसिस होगा तो फ्लेक्सर्स पावरफुल होते हैं. These muscles are acting opposite to each other. इसमें से एक पैरालाइज हुआ, एक्सटेंसर्स अगर पैरालाइज हो गए तो हाथ ऐसा हो जाए. ऐसा नहीं कि हाथ ऐसा ही पड़ा है, नहीं. तो अगर ये मसल्स जिनका एक्शन इधर फ्लेक्शन और इधर एक्सटेंशन है, ये अगर पैरालाइज होते हैं तो opposite muscles will go into spasm or more powerful
और एग्जैक्टली उल्टा होगा एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इनका एक्शन क्या है? ये क्लमकीज आपको सिखाया। सो क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड, इसको क्लॉ हैंड बोलते हैं। ओके, हम लोग जब कभी बस स्टैंड पे, रेलवे में, उधर से जब हम ट्रैवल करते तो लोग आते ना भिख मांग रहे, पैसा दे दो दे दो दे दो दे दो, ऐसा हाथ करके आते हैं। बोले ऐसा कोई पैरालिसिस होता ही नहीं है कि जिसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट इंटरफैलेंजियल जॉइंट साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल पैसा नहीं देने का उन लोग, चेक करने का। पहले क्या चेक करने का? वेदर देयर इज, बोलेगा हाथी का 1 मिनट, वेदर देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, हाइपर एंड फ्लेक्शन एट इंटरफैलेंजियल। तो फिर इज्जत से पैसा देने का, भाई तेरे को क्लमकीज हुआ है, उसको भी इंफॉर्मेशन देने का थोड़ा सा। सो हाँ, तो ये आपको क्यों बता रहा हूँ रीजन। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से जाती है, तो जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह मारते हैं ना, तो यहाँ पे मारते हैं नॉर्मली। मारने का तो यहाँ पे ही मारो, बस यहाँ तो ब्लड वेसल वगैरह सब नीचे से जाते हैं। लैटरल पे मारोगे तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि अल्नार नर्व कट होगा, आर्टरी वेटरी कुछ नहीं, उसमें से ब्लीडिंग होगी, अल्नार नर्व कट होगा, और फिर जिंदगी भर ये क्या हो रहा है तेरे हाथ में, नहीं ऐसे ही जिंदगी भर ऐसा रहना पड़ेगा। ओके, तो वो ब्लेड भी इधर मारने गए नहीं, बिल्कुल। कितना भी फ्रस्ट्रेट हो गए, लोगों को समझता नहीं, हाँ करके सो जाते हैं, बाद में उठते हैं। बिकॉज अल्नार नर्व डज नॉट पास बिलो द फ्लेक्सर, ऊपर से जाती है बाबा। इधर कट लगा ना तो अल्नार नर्व कट हो सकता। ऑफ कोर्स देयर इज एडिशनल लेयर, इट पासेस थ्रू ऐसा पिसिफॉर्म और हैमेट, एक ऐसा कैनल बनाते हैं, उसमें से जाता है, उसको गयांस कैनल बोलते होते हैं। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि वो ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्वेश्चंस पीजी नीट में आते हैं कि गर्ल ही बोलते हैं हर बार, आई डोंट नो बॉयज कहते हैं, you should put a case on them for being biased. She cuts her hand. उसमें खाली इतना नसीब हमारा कि ऐसे नहीं लगते थे, और गर्ल फ्रस्ट्रेटेड विद पीजी नीट and then she comes to the casualty with claw hand. तो then you know कि ये क्या है। अभी इनके कुछ अगर हमको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं अल्नार नर्व के, तो एक डायग्राम तो अपना, अभी आपको ये डायग्राम का यूटिलिटी समझा रहेगा। मैंने जब ड्रॉ किया था फर्स्ट टाइम, तभी आप सोचते नहीं है क्या ये डायग्राम, अभी समझेंगे ये इसका यूज है। ओके, मीडियल साइड पे है वेन, लैटरल साइड पे है कोरेकोब्रेकलिस, फिर इधर है मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, बरोबर। तो ये उसके हो गए एक्सिला के रिलेशंस। ओके, नाउ मैंने कुछ चीज आपको तभी सिखाया नहीं था कि वो ऐसा है कि यहाँ पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म रहता है, यहाँ पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व आर्म रहेगा। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, डे 1 पे मैंने आपको बताया नहीं। जैसे लास्ट टाइम हमने मीडियन नर्व सीखा था, तो उसमें एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सीखा था हमने, इट सप्लाइज द डीप मसल। वो ऐसे नीचे जाके ब्रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करती है, इट गोज डाउन, उसमें आप ऐड कर सकते हो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। इट सप्लाइज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, लैटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर रीजनल प्रोफाइल, और वो नीचे जाके ब्रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करेगी, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। ओके, फिर अल्नार नर्व यू कैन शो वन डायग्राम कि ऐसा ह्यूमरस है, एंड देन ये अल्नार नर्व ऐसे रन हो रही है, एंड देन सडनली गोइंग टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। ऐसा एक डायग्राम आप बना सकते हो। ये डायग्राम अभी तक कॉपी नहीं किया है किसी ने, मैं ऐसे बहुत 20 साल से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के नोटबुक में से उठा के लोगों ने बुक में छापे,
तो यू कैन जस्ट शो कि ऐसे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में गए at the level of insertion of coracobrachialis, and then comes behind the medial epicondyle and then enters the forearm. तो फोरआर्म के तो 5 मसल आपको मालूम है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा जो है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रहेगा, ओके। और प्रोफंडस यहाँ पे, मैंने जस्ट ग्रॉसली आपको बताया कि फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस यहाँ पे है, फ्लेक्सर प्रोफंडस दोनों के बीच में से वो ऐसे आएगी। फिर यहाँ पे है रेटिनाकुलम, उसके ऊपर से वो ऊपर से जाएगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी। मैं आगे का डायग्राम ऊपर निकालता हूँ, चलो। उसके ऊपर से जाएगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी एंड इट एंटर्स द हैंड। अभी हैंड में वो क्या होता है, बिफोर दैट वी विल ड्रॉ द ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस के। सो C8 T1 से अल्नार नर्व फॉर्म हो गई, उसको C7 भी मिल गया। एक्सिला में कोई भी ब्रांच नहीं देता, एक्सिला में कोई भी ब्रांच नहीं। आर्म also no branches, maximum it may give a branch to elbow joint towards the lower part, जैसे elbow joint को दे सकता है एकदम लोअर पार्ट में से, ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ आर्म फोरआर्म के जंक्शन। फोरआर्म में लेट्स कॉल दिस एज सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, दिस एज डीप कंपार्टमेंट। So in superficial compartment it supplies only one muscle, flexor carpi ulnaris, okay. And in the deep compartment it supplies medial half of flexor digitorum profundus. So profundus को medial half को supply, okay. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ बिकॉज ये लोग को दिखता नहीं नीचे से। यहाँ पे ये भी ऐसा पामर, ये खुद ही ऊपर से जा रही, तो ये भी एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच देगी सपोज मीडियल साइड। अंदर जाके इट डिवाइड्स इनटू मीडियल, इट्स सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, व्हिच आई एम नॉट शोइंग राइट नाउ। राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पे वो ब्रिस्ट जॉइंट को भी ब्रांच दोगी, ब्रिस्ट जॉइंट, इंफीरियर रेडियोलार जॉइंट, ओके, ब्रिस्ट जॉइंट को सप्लाई करेगी, मेनली ब्रिस्ट जॉइंट को अल्नार को, because there is a law that wherever a muscle crosses the joint, the nerve supplying the muscle also supplies the joint. कौन सा लॉ है? जनरल एनाटॉमी का वो बेबी चौरू, बेबी को इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। So now it goes and supplies, suppose this is cutaneous and these are muscular branches. Cutaneous में it will supply medial 1.5 digits, medial 1.5 digits. रिंग फिंगर का मीडियल हाफ एंड लिटिल फिंगर, मीडियल 1.5, 8.5, lateral 3.5 is by medial, cutaneous supply 3.5 is by medial, 1.5 medial is by ulnar, ओके। तो यहाँ पे
सेंसेशन नहीं है मतलब मीडियम नर्व में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेंसेशन नहीं मतलब मीडियम नर्व में प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं है मतलब अल्नार में प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं है मतलब अल्नार में, यहाँ पे नहीं है मतलब मीडियम 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 अल्नार अल्नार। ओके, and then it supplies 4 hypothenar muscles, it supplies 4 palmar interossei, it supplies 4 dorsal interossei, it supplies 2 lumbricals, lumbrical number 3 and 4, 2 lumbricals, the medial 2 lumbricals 3 and 4, and it supplies adductor pollicis, adductor pollicis, it will supply adductor pollicis. So I'll repeat again, जो लोग को दिख नहीं रहा है पीछे से, it supplies 4 hypothenar muscles, it supplies 4 palmar interossei, it supplies 4 dorsal interossei, it supplies lumbrical 3 and 4, that is 2 lumbricals, medial 2 lumbricals, and it supplies adductor pollicis, adductor pollicis. Okay, टोटल कितने मसल हो गए? 4 + 4 + 4 12 + 2 14 और ये, बट आपको जो ऑल टाइम एग्जामिनर मिला उसने बोला 15 15 15, तो बोलेगा सर 15.5, बिकॉज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रोविस का डीप हेड ऑल्सो। ओके, सो नाउ I'll just draw how this supply happens. ये जब अल्नार नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को पियर्स करके यहाँ पे आती है तो इट गिव्स अ सुपरफिशियल ब्रांच, पहले ये उसकी सुपरफिशियल ब्रांच है। अब ये लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। ये सुपरफिशियल ब्रांच क्या करती? एक क्यूटेनियस नर्व ऐसे देती, दूसरी क्यूटेनियस नर्व ऐसे देती, जो यहाँ पे आके रुकेगी और स्प्लिट ब्रांचेस देखी, एक रिंग फिंगर की ये साइड पे और एक लिटिल फिंगर की ये साइड पे, रिंग फिंगर होती वैसे स्प्लिट होती। तो यहाँ पे जब एनेस्थेशिया देंगे ना तो ये साइड भी एनेस्थेटाइज होगा। एंड इट विल आल्सो सप्लाई palmaris brevis, it will also supply palmaris brevis, it will also supply palmaris brevis। ये है सुपरफिशियल ब्रांच। फिर जो डीप ब्रांच है ना, डीप ब्रांच वो बाकी सारे मसल्स को सप्लाई करते हैं। एकदम ये एंड पे जाके एडक्टर पॉलिसिस को भी सप्लाई करें। Okay, so it will supply all the dorsal interossei, palmar interossei, dorsal interossei. It will supply all the hypothenar muscles. सबको ऐसे सप्लाई करते कर। इधर you can draw their names. Okay. So in the textbook it is shown that ulnar nerve in hand gives a branch to the wrist joint। तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते, बिकॉज वो ऑलमोस्ट जंक्शन पे ही होता है wrist joint, ज़्यादा आगे जाके भी पॉइंट नहीं। ओके, सो इट मेंशंस द articular branch to the wrist joint। Okay, otherwise all seems good। So thank you।